Hello students. So students, in the previous part of the video, we had discussed exercise 6.1 from NCERT mathematics books, okay? So in this video student, we are going to understand how to solve linear inequalities in two variables by the graphical method, okay? The heading for this will be graphical solution of linear inequalities in two variables, okay? Now student, in the previous parts, I told you how to solve linear inequalities in one variable with the help of algebraic method also and with the help of number line method also, okay? So in this video, we will able to know how to solve linear inequalities in two variable by graphical method, okay? Students, if you remember the first part of this chapter, I have written many linear inequalities in one variable also and in two variable also. So first you should know how we can write linear inequalities in two variables, okay, and how we will represent it. So see student, suppose ax plus by, okay, greater than c. See, ax plus by greater than c, or second one, ax plus by less than c, or ax plus by greater than or equal to c, or ax plus by is less than or equal to c. So whatever linear inequalities I have written here, these linear inequalities are in two variable, okay, where x and y are the variable and a, b and c are real numbers. So we can write this, suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So linear inequalities in two variables can be written like this also, okay, where x and y are variables and a comma b comma c are real numbers, okay, and a is not equal to 0 and b is also not equal to 0, okay. The first, second, third, fourth is known as linear inequalities in two variable where x and y are variable and a, b and c are the real numbers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0. So these are known as linear inequalities in two variable, okay. So now these two inequality sign I have already told you, this is known as strict inequalities. Strict inequality means if it is increasing then it will always increase, and if it is decreasing it will also decrease. देखो ax plus by is greater than c ना, so the meaning of this is ax plus by will always greater than c. Similarly ax plus by is always less than c. So these two inequalities are known as strict inequalities, okay, and these two, third and fourth, are known as slack inequality. This and this sign means greater than or equal to and less than or equal to are known as slack inequalities, okay. So these two are known as strict inequalities and these two are known as slack inequalities. So this is the general idea of linear inequalities in two variables. Now we have to solve them with the help of graphical method. So student, you might be knowing that we can represent any solution in the Cartesian plane, okay, there we can represent any solution in the Cartesian plane. Cartesian plane is the combination of x-axis and the y-axis, okay. Cartesian plane is the solution of Cartesian plane is the combination of x-axis as well as y-axis. So suppose it is x-axis, x dash and y dash. This plane is known as xy plane. We all know that this plane is known as xy plane or Cartesian plane. So if we draw a line in the Cartesian plane, suppose I have drawn a line in the Cartesian plane like this, okay. So that line will divide this Cartesian plane into two parts, okay, two half parts, okay. I am going to repeat one more time. X and y axis are known as
coordinate axis and this plane is known as Cartesian plane. Okay, Cartesian plane or XY plane. ठीक है, whenever we draw a line in the Cartesian plane, that line divide the Cartesian plane into two half. Okay, into two half. Now student, question comes in the mind that this line will be perpendicular or slanting. ठीक है, this line will be perpendicular or not perpendicular. So whenever we will draw a perpendicular line, so it will form two parts of Cartesian plane. It will form two parts of Cartesian plane, and this part is known as left half plane. Left half plane, and this part is known as right half plane. Right half plane, and this line is perpendicular to the x-axis. Okay, this line is perpendicular to the x-axis. Line can be perpendicular also and cannot be perpendicular also. Okay, so suppose xy axis is there. This plane is known as Cartesian plane, and I have drawn a line perpendicular to x-axis. So by drawing that line, this Cartesian plane will divide into two halves. This half is known as left half plane and this half is known as right half plane, as it shows. Okay, see, this is a line, this will be the left part and this will be the right part. So this, जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे, कार्टेशियन प्लेन दो हाफ में बदल जाएगा. इस प्लेन को बोलोगे लेफ्ट हाफ प्लेन एंड इस पार्ट को बोलोगे राइट हाफ प्लेन. कब बोलोगे? जब ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर. ओके, अब एक और केस हो सकता है ना स्टूडेंट, आई होप दिस यू हैव रिटन. वन मोर केस कैन बी देयर. इफ लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, इफ लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर, सो सपोज व्हेन आई विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, x dash y dash. Okay, suppose the line is not perpendicular, means line is like this, line is like this. ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती है. तो सपोज मैंने ऐसी लाइन, तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस केस में भी दो पार्ट में बदल जाएगा. इस केस में भी जो कार्टेशियन प्लेन है हमारा, वो दो हाफ प्लेन में बढ़ जाएगा. अब इस केस में जो प्लेन होगा उसका नाम क्या होगा? तो इसको बोलेंगे, देखो ये लाइन के ऊपर है तो इस वाले सेक्शन को बोलेंगे, ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसके इस साइड वाला एरिया, उसको बोलेंगे अपर हाफ प्लेन. ठीक है, अपर हाफ प्लेन. और इसके नीचे के पार्ट को क्या बोलेंगे? लोअर हाफ प्लेन. ठीक है, ये तब होगा व्हेन लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर. ठीक है, व्हेन लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर. और ये तब होगा व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर. व्हेन लाइन इज perpendicular to what? Perpendicular to, in this case, x-axis. Okay, in this case in x-axis, to x-axis. Only line is perpendicular. अब ये लाइन जो है वो x-axis के भी परपेंडिकुलर हो सकती है और y-axis के भी परपेंडिकुलर होती है. तो जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उस केस में जब दो पार्ट बनता है, देखो जैसे ही लाइन ड्रॉ करोगे, कार्टेशियन प्लेन दो हाफ प्लेन में बदल जाएगा. एक हो जाएगा लेफ्ट हाफ प्लेन और एक हो जाएगा राइट हाफ प्लेन, तब जब लाइन परपेंडिकुलर होगा. सेकंड केस में जब लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगा, मतलब कि तिरछा होगा, कैसा भी होगा, तो उस केस में फिर से दो हाफ प्लेन में बटेगा. ऊपर वाले को बोलोगे अपर हाफ प्लेन और नीचे वाले को बोलोगे लोअर हाफ प्लेन. अब देखो जितने भी सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन मतलब किसी लीनियर इक्वेशन, मान लो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है विच इज इन टू वेरिएबल, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन उस लाइन पे जितने पॉइंट्स आ रहे होते हैं वही उसका सोल्यूशन होता है. ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या सोल्यूशन होता है? लीनियर इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन या तो लेफ्ट हाफ प्लेन पे होगा, या तो राइट हाफ प्लेन पे होगा, या लाइन पर होगा. लाइन पे भी तो होगा ही, लेफ्ट हाफ पे भी हो सकता है, राइट हाफ पे भी हो सकता है. ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी इनइक्वालिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो बस इतना अभी के लिए इतना समझो कि XY plane is known as Cartesian plane, and whenever we draw a line perpendicular to the axis, that Cartesian plane divides into two half plane. The left one is known as left half plane and the right one is known as right half plane. And whenever line is not perpendicular to the Cartesian plane,
So in that case, again Cartesian plane will divide into two parts, two half parts. The upper one is known as upper half plane and the lower one is known as lower half plane. ठीक है, so that is the introduction only. ठीक है, अब जो सोल्यूशन होता है वो इन्हीं रीजन में होता है, या तो लेफ्ट हाफ प्लेन में होगा, या तो राइट हाफ प्लेन में होगा, या तो लाइन पे होगा. ठीक है, वो कैसे होगा वो हम लोग क्वेश्चन से करेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ इट कम्स. ओके, हाउ इट कम्स. नाउ स्टूडेंट see, so I think this is clear to you. So how we will find the solution of linear inequalities in two variable. ठीक है, linear inequalities in two variable. तो suppose student I have to draw, thus I have to find the solution of 3x plus 2y is greater than 6. I have to find the solution of this by graphical method. By graphical method. ठीक है, I can solve the question with the help of example. Solve 3x plus 2y greater than 6 by the graphical method. तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट? तो पहले आप क्या करो कि जो भी इनइक्वालिटी साइन है, ठीक है, अब देखो मैं आपको एक केस बताता हूं कि जब भी इनइक्वालिटीज आता है तो पहले आप क्या मान लो कि वो एक स्ट्रेट लाइन है. आपको पता है ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ax प्लस by इक्वल टू c. ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो जो भी इनइक्वालिटीज दिया हो उसको पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मान लो. ठीक है, तो अगर इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मानूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x plus 2y equal to 6. ठीक है, अब इस लाइन का सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? इस लाइन का क्या सोल्यूशन होगा? इस लाइन का सोल्यूशन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वही इसका क्या होगा? सोल्यूशन. और आपको बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में कि एक लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशंस के. ओके, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मान लो, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं. और वो इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होते हैं? वह पॉइंट्स जो उस लाइन पे आ रहे होते हैं. तो पहले आप इसको ऐसे लिख दो. ठीक है, अब ये जो आपका आया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका ग्राफ ड्रॉ करो. ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते थे स्टूडेंट? आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है. आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनाते थे? एक पॉइंट x एक्सिस पे लेते थे और एक पॉइंट y एक्सिस पे लेते थे. ठीक है, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते थे, तो जो लाइन बनती थी वही उसका क्या हो जाता था? ग्राफ. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस 3x. जो भी दिया हो, इनइक्वालिटी का साइन जो भी दिया हो, उसको पहले आप स्ट्रेट लाइन मान के करो. ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो आई विल टेक 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट एट x एक्सिस, so at x axis student y will be 0, at x axis y will be 0, so 3x plus 2 into 0 equal to 6, so 3x plus 0 equal to 6, so 3x equal to 6, so x will be equal to 6 by 3, that is 2. So point on x axis will come 2, 0. ठीक है, similarly we can find on y axis, so at y axis x will be 0. So when you will put x equal to 0 in this equation, you will get 3 into 0 plus 2y equal to 6. So 0 plus 2y equal to 6 or 2y equal to 6. Okay. So y is equal to 6 by 2, that is 3. So the point will be 0, 3. So 2 points we have calculated for this line, that is 3x plus 2y equal to 6. Okay. Now we will draw the graph of this. Okay. We will draw the graph of this. So suppose I have drawn x axis and y axis. ठीक है, now first I have to draw the graph of this. ठीक है, graph of this. So I have taken 2 points. First point is 2, 0 and the second point is 0, 3. So suppose it is 1, 2, 3 and so on, -1, -2, -3.
सिमिलरली 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। सो 2,0 स्टूडेंट, 2,0 विल कम हेयर एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो इट विल बी 2,0 एंड इट विल बी 0,3, ठीक है। एंड फॉर मेकिंग द ग्राफ ऑफ दिस आई हैव टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, सो आई विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया ग्राफ इसका, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो किसका ग्राफ था, दिस इज द ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 6। लेकिन अब देखो ये जो लाइन ग्राफ शो कर रहा है, ये उस लाइन का सोल्यूशन शो कर रहा है जो कि 3x + 2y = 6 है, ठीक है। मतलब कि इस लाइन का जो सोल्यूशन होगा वो किस पे लाई करेगा, इस लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। इस इक्वेशन दैट इज, ये जो इक्वेशन है ना 3x + 2y = 6, इसका जो सोल्यूशन होगा वो कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा इस लाइन पर, ठीक है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, 3x + 2y > 6, ठीक है। मतलब कि इनइक्वालिटी का साइन है, तो आपको चेक करना। अब देखो जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया स्टूडेंट, ये XY प्लेन 2 पार्ट में बढ़ गया, 2 हाफ में बढ़ गया, एक हाफ ये और एक हाफ वो। ये लाइन तिरछी है ना, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे अपर हाफ प्लेन और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन। अगर परपेंडिकुलर होता तो लेफ्ट और राइट में बदलता, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, तो इसलिए ये जो 2 पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, ये पार्ट होगा आपका अपर हाफ प्लेन और ये होगा आपका लोअर हाफ प्लेन, ये वाला पार्ट, मतलब कि इस लाइन के इधर वाला लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं बस। अब देखो, अब पता कौन सा चलेगा कि हमको लोअर हाफ प्लेन। अब ध्यान दो, जो भी सोल्यूशन होगा हमारा वो इस लाइन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस लाइन पे, इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो जो भी सोल्यूशन आता वो इस लाइन पर आता, लेकिन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है। तो हमको कौन सा रीजन लेना है, हमें नीचे वाला रीजन लेना है या ऊपर वाला रीजन लेना है। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं, इसको हम लोग एक पॉइंट लेके डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि जो भी हमारा रीजन होगा, या तो वो देखो लाइन तो नहीं होगा, सोल्यूशन में हमारा लाइन नहीं आएगा, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ भले कर दिया लेकिन लाइन हमारा नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों रीजन में से लेना है कि कौन सा रीजन हमारा सोल्यूशन होगा, ये वाला रीजन सोल्यूशन होगा या ये वाला रीजन सोल्यूशन होगा, अपर वाला होगा या लोअर वाला होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उससे चेक करते हैं कि क्या हमारा जो हम ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो आप रेफरेंस के लिए क्या लिया करो, ओरिजिन। रेफरेंस के लिए क्या लिया करो, ओरिजिन, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट ले लिया करो ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट करो, इस रेफरेंस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट करो और देखो कि क्या सही आ रहा है, क्या इसको पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो, अगर मैं 0,0 इसमें पुट करूं तो 3x + 2y > 6 दिया हुआ है। अब मैं x और y की जगह 0,0 पुट कर रहा हूं, so it will be 3 × 0 and it will be 2 × 0 which is greater than 6. So 0 + 0 is greater than 6. So 0 is greater than 6. क्या ये सही है, क्या ये सही है, सही नहीं है। 0 is greater than 6 ये रॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था, अगर ये सही होता, अगर ये सही होता तो इससे ये पता चलता कि हाँ ये वाला। अब देखो 0 किस साइड आ रहा है, ये जो ओरिजिन है ये किस साइड आ रहा है, ये इस लाइन के इस साइड आ रहा है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है। और लोअर हाफ प्लेन का एक पॉइंट हम लोग लिए और इनइक्वालिटी में पुट किए तो पता चला कि वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। तो अगर सेटिस्फाई करता है तो वो वाला प्लेन हो जाता है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपोजिट वाला प्लेन हो जाता है। मतलब कि ये जो ओरिजिन था ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या था, लेफ्ट साइड, मतलब कि लोअर हाफ में था। ये जो ओरिजिन है स्टूडेंट, ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में लोअर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है। और जब लोअर हाफ प्लेन के लिए पुट किए थे तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं किया था। अगर सेटिस्फाई कर जाता तो हमारा जो सोल्यूशन रीजन होता वो लोअर हाफ रीजन होता,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग ये वाला रीजन नहीं लेंगे, हम लोग कौन सा रीजन लेंगे, अपर रीजन। तो इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा रीजन होगा, वो अपर हाफ रीजन होगा, दैट विल बी दिस रीजन होगा, ठीक है, दिस रीजन। अब एक चीज और देखना है आपको, ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती है, स्ट्रिक्ट मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन और लेस देन, अगर ये दोनों इनइक्वालिटी होती है तो जो लाइन पे, जो इस लाइन पे पॉइंट्स आते हैं वो सोल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान दो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती है, स्ट्रिक्ट मतलब या तो ये वाली ग्रेटर वाली या लेस वाली, अगर ये दो इनइक्वालिटी होती है तो जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना, हर क्वेश्चन में आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो जो लाइन ड्रॉ करते हैं उस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया था, ये लाइन जो होगी वो डार्क लाइन नहीं होगी, वो क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी, ठीक है, दिस विल बी डॉटेड लाइन। और अगर स्लैक इनइक्वालिटी होती, अगर स्लैक ये वाली या ये वाली ये होती, तो हम लोग उस लाइन के पॉइंट्स को भी सोल्यूशन में काउंट करते, जैसे कि मैंने बताया था ना इसके पहले वाले में कि जब स्लैक इनइक्वालिटी होती थी तो वो वाले पॉइंट भी इंक्लूड करते थे। सिमिलरली जब स्लैक इनइक्वालिटी होती है तो लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वो भी सोल्यूशन के अंदर आएंगे, और जो रीजन उसके अंदर आ रहा होगा वो भी उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका ग्राफिकल मेथड से इसका सोल्यूशन। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मतलब कि ग्रेटर और लेस के केस में लाइन हमेशा डॉटेड रहती है, और स्लैक इनइक्वालिटीज के केस में लाइन हमेशा डार्क होगी, ठीक है। बस एक चीज आपको पहचानने अगर आ गया ना, पहले आप लाइन ड्रॉ कर लो, जो भी इनइक्वालिटीज दी हुई हो उसको पहले आप इक्वेशन मान के उसका लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लो, मतलब कि लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन से पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेन है, अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है, या लेफ्ट हाफ प्लेन है या राइट हाफ प्लेन है। उसके बाद आपको चेक करना है कि हमको कौन सा रीजन लेना है, तो रीजन के लिए रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन लेना, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अगर 0,0 पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये कंडीशन जो आया था वो सेटिस्फाई कर रही है, तो वो वाला, तो ओरिजिन के साइड वाला रीजन लेते हैं, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो लाइन के अपोजिट साइड वाला रीजन लेते हैं। देखो ओरिजिन जो था वो लोअर हाफ रीजन में था ना, ओरिजिन जो था वो लोअर हाफ रीजन में था। देखो लाइन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, लाइन के रिस्पेक्ट में, और लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन लेफ्ट साइड था, लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन जो था वो लोअर हाफ प्लेन में था, तो हमने लोअर हाफ प्लेन का एक पॉइंट लिया, क्या लिया, ओरिजिन लिया, क्योंकि ये ओरिजिन लोअर हाफ प्लेन में ही लाई कर रहा है। तो ओरिजिन लेके हमने चेक कर लिया कि क्या इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो लोअर हाफ रीजन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका अपोजिट रीजन होगा, दैट इज अपर हाफ रीजन। तो जो सोल्यूशन होगा वो इसका ये हो जाएगा, ये वाला रीजन, इस लाइन के ऊपर वाला सारा रीजन इस इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन से बताते हैं आपको, याद रखना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इस साइन को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और इस केस में लाइन हमेशा डॉटेड होती है और इस केस में हमेशा डार्क लाइन होती है। डॉटेड का मतलब कि लाइन पे जो पॉइंट्स है वो सोल्यूशन में काउंट नहीं होंगे, और डार्क लाइन का मतलब कि हाँ वो पॉइंट्स भी काउंट होंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल इट इज, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। वी ऑल नो दैट कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसी की मदद से हमको करना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ही हो, लाइन हमेशा वैसी हो सकती है। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन, सॉल्व 2x minus y is greater than equal to 6, 2x plus y is greater than equal to 6 by graphical method, ठीक है, by graphical method, by graphical method। तो स्टेप क्या है स्टूडेंट हम लोगों का, हम लोग का देखो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल है ना, है, तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्या करो, ड्रॉ, क्या करते हैं हम लोग, पहले इनइक्वालिटीज को कंसीडर नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि वो इक्वेशन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, पहले जो भी इनइक्वालिटीज दी हुई है उस पर ध्यान मत दो। पहले हम मान लो कि ये एक इक्वेशन था, तो अगर इक्वेशन होता तो क्या होता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो पहले आप इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो 2 पॉइंट चाहिए होगा, वन इज ऑन x एक्सिस एंड वन इज ऑन y एक्सिस। तो देखो ध्यान से, ऑन x एक्सिस स्टूडेंट पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो ऑन x एक्सिस y will be 0, so 2x plus 0 will be 6, so 2x will be 6, so x will be 3। ठीक है, तो पॉइंट क्या आएगा x एक्सिस पे 3,0। सिमिलरली ऑन y एक्सिस, so on y axis x will be 0, so by putting the value of x in this equation, so 2 into 0 plus y equal to 6, so 0 plus y equal to 6, so y equal to 6। ठीक है, ये हुआ, तो पॉइंट क्या आएगा 0,6। अब आप इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाना बहुत इजी है। वन 2 3 4 5 x डैश -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इट इज y एक्सिस। ठीक है, अब पहले इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं। तो 3,0 विल कम हेयर, सो 3,0 यहाँ पे होगा 3,0 एंड इट विल बी 0,6। ठीक है, नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट, सो व्हेन वी विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट स्टूडेंट, द लाइन विल कम लाइक दिस। ठीक है, द लाइन विल कम लाइक दिस। सो अगेन पहले हमने इसका ग्राफ बना लिया। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद देखा कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 2 पार्ट में बढ़ गया। देखो ये लाइन है, और जैसे ही लाइन ड्रॉ किया ये कार्टेशियन प्लेन 2 पार्ट में बढ़ गया, 2 हाफ प्लेन में, और लाइन के नीचे लोअर हाफ प्लेन। यहाँ पे लेफ्ट और राइट इसलिए नहीं बना है क्योंकि अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तब लेफ्ट और राइट बनता है, जब लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती है तो अपर और लोअर बनता है। ठीक है, तो दिस पार्ट इज नोन एज अपर, दिस पार्ट इज नोन एज लोअर। इतना हो गया। ठीक है, अब देखो इसको लिख लो आप, ऊपर वाले को अपर हाफ प्लेन एंड दिस विल बी लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, लोअर हाफ प्लेन मतलब लाइन के नीचे है तो लोअर, लाइन के ऊपर है तो अपर। अब देखो जो इनइक्वालिटीज थी स्टूडेंट, अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेन। अब देखो ध्यान से, अब लाइन के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान दो, इतना हो गया। अब ध्यान दो, जो हमारे इस इनइक्वालिटी थी, जो क्वेश्चन था, पहले तो हमने ग्राफ बना लिया, फिर जब क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन हमारा था 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इस इनइक्वालिटी साइन को देखा, और जैसे ही इस इनइक्वालिटी साइन को देखा पता चला हमें कि ये स्लैक इनइक्वालिटी है। और स्लैक इनइक्वालिटी में हम उस लाइन को भी, लाइन पे जितने पॉइंट्स आते हैं वो भी काउंट करते हैं, तो लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इस केस में जो लाइन बनेगा वो डॉटेड नहीं होगा, वो क्या होगी डार्क लाइन। तो इस केस में डॉटेड लाइन नहीं होगा, क्या होगा डार्क। मतलब कि डार्क ये शो करता है कि उस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो भी इस इनइक्वालिटी क्या होंगे, सोल्यूशन। अब हमें ये डिसाइड करना है कि लाइन के ऊपर वाला पार्ट लेना है या नीचे वाला, मतलब कि अपर हाफ प्लेन लेना है या लोअर हाफ प्लेन। तो फिर से रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट हमेशा स्टूडेंट ओरिजिन लेना, ओरिजिन दैट इज 0,0। ठीक है, ओरिजिन किस साइड है स्टूडेंट, ये देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन हमारा किस साइड है, ओरिजिन हमारा लोअर हाफ प्लेन में है। ओरिजिन जो है वो लोअर हाफ प्लेन, देखो लाइन के नीचे, हम मैंने यहां भले लिखा है लेकिन लाइन के नीचे से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो लोअर हाफ प्लेन होगा। मतलब कि लाइन ये है तो लाइन के नीचे ये जितना भी पार्ट है वो लोअर है, और लाइन के ऊपर जितना भी पार्ट है वो अपर है। तो जो ओरिजिन है वो लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है, लोअर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है। तो एक बार ओरिजिन की वैल्यू इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जो इनइक्वालिटी है वो है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, पुट करते हैं तो इट विल बी 2 into 0 plus 0 greater than 6, so 0 plus 0 is greater than or equal to 6, या 0 is greater than or equal to 6। अब इसको देखो आप, जब ओरिजिन की वैल्यू हमने इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो 0 is greater or equal to 6, क्या 0 6 से बड़ा या 6 के बराबर होता है।
नहीं, जीरो जो होता है वो ना तो 6 के बराबर होता है ना 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब जैसे ही ओरिजिन को हमने इस इनइक्वालिटी में पुट किया, ये सेटिस्फाई नहीं किया, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये ओरिजिन किस रीजन में आ रहा था, लोअर हाफ रीजन में आ रहा था ना, तो मतलब कि हम लोग को ये वाला रीजन नहीं लेना है, मतलब कि लोअर हाफ रीजन नहीं लेना। अगर सेटिस्फाई कर जाता तो ओरिजिन लोअर हाफ रीजन में है, इसलिए हम ये रीजन लेते, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, तो यानी कि हम लोग कौन सा रीजन लेंगे, जस्ट अपोजिट वाला रीजन, दैट इज अपर हाफ रीजन। तो द सोल्यूशन जो होगा वो इस लाइन के ऊपर जितने भी एरिया होंगे दैट विल बी द सोल्यूशन। ऐसे ड्रॉ करना है आपको, ऐसे। ये शो करता है कि इस लाइन और इस लाइन के ऊपर जितना भी रीजन है वो इस लीनियर इनइक्वालिटी का क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो कभी, अब मैंने दो क्वेश्चन कराया, दोनों में सेटिस्फाई नहीं किया। अगर सेटिस्फाई कर जाता, देखो अगर सेटिस्फाई 0 0 पुट करने में सेटिस्फाई कर जाता, तो आप फिर देखते कि जो ओरिजिन था वो लाइन के रिस्पेक्ट में लोअर हाफ रीजन में था, और हमने लोअर हाफ रीजन का ही तो एक पॉइंट लिया ओरिजिन, और जब उसको रखे तो सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका ये मतलब हुआ कि हाँ, ये जो रीजन होगा वही उस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा, तो उस केस में नीचे वाला होता, लेकिन सेटिस्फाई किया नहीं, इसीलिए लाइन के ऊपर वाला रीजन क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। वो लाइन भी होगा, वो लाइन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटीज है। अगर यही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता तो लाइन नहीं होता, लाइन के ऊपर वाला होता। यहाँ पर लाइन दी है और लाइन के ऊपर वाला है, तो जब स्लैक होता है तो लाइन को डार्क बनाना, जब स्ट्रिक्ट होता है तो लाइन को डॉटेड बनाना। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, so please note down it. Now student, it is the first question of your exercise 6.2. अब ध्यान दो, क्या है, solve x plus y is, it is less than student, ठीक है, solve x plus y less than 5, x plus y is less than 5 graphically in 2-dimensional plane. 2-dimensional plane means xy plane. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, x plus y is less than 5। अब जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट, आपको पता चल जाएगा कि विच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज यूज्ड, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और स्लैक इनइक्वालिटीज। देखो दिस इज द साइन ऑफ लेस देन, और यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इसका मतलब जो भी लाइन बनाओगे, अब देखो यहां से आइडिया पता चल गया कि जो भी लाइन बनाओगे आप, दैट विल बी डॉटेड लाइन। क्या होगी, डॉटेड लाइन। ठीक है, अब देखो, अब इसको करने के लिए फिर से वही चीज, जो भी इनइक्वालिटीज दे दिया है उसको आप इक्वेशन मान के उसका ग्राफ बना दो। तो पहले क्या लिखोगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले इसको इक्वेशन मान के उसका ग्राफ बना दो। तो अगर हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाए, तो अगेन हमको पता है, देखो लीनियर इक्वेशन चाहे 1 वेरिएबल में हो चाहे 2 वेरिएबल में हो, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, आइदर इट इज इन 2 वेरिएबल और इन 1 वेरिएबल, इट्स ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जितने भी पॉइंट उस लाइन पे होते हैं वो उसके सोल्यूशंस होते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि लीनियर इक्वेशन से कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इन 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन, इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब ध्यान दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका ग्राफ बनाना है। तो ऑन x एक्सिस अब एट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0, so when I will put the y equal to 0, so x plus 0 will be equal to 5, so x is equal to 5, so point will come 5 comma 0. ठीक है, similarly on x axis, on x axis तो निकाल लिया, on y axis, so on y axis x equal to 0, so when we will put x equal to 0 in this equation, so 0 plus y is equal to 5, so y equal to 5, so point will come 0 comma 5. ठीक है, x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0, you all know that. ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये जो लाइन बनाएंगे स्टूडेंट हम लोग, 1, वो क्या होगी, डॉटेड होगी या डार्क होगी, दैट विल बी डार्क। ठीक है, दैट विल बी डॉटेड,
जो भी इसका लाइन बनेगा वो क्या होगा, लाइन वो डॉटेड लाइन होगा, वो डार्क लाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज यूज हुई है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 5,0 कहाँ है, तो 5,0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये है 5,0 और 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और 0,5 वाई एक्सिस पे, मीन्स यहाँ पर इट इज 0,5 और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें। ठीक है, लाइक दिस। अब ये लाइन क्या होगी स्टूडेंट, ये डॉटेड लाइन होगी। ठीक है, डॉटेड, तो मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूं, डार्क नहीं होगी, डॉटेड होगी। बाय सीइंग दिस फिगर वी कैन से द ग्राफ ऑफ x + y = 5 एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि 0,5 और 5,0 से पास करेगा। ठीक है, तो ये लाइन का ग्राफ हो गया, मतलब कि स्ट्रेट लाइन। ये इस इक्वेशन का क्या हो गया, ग्राफ। और इक्वेशन क्या था, x + y = 5। क्यों मैंने डॉटेड बनाया है, डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज यूज हुई है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या होती है, ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन। ठीक है, ये दोनों होती है स्ट्रिक्ट, और लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन होता है उसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। तो अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं तो वहां पे लाइन जो बनाते हैं वो डॉटेड रहती है। ठीक है, तो दिस लाइन विल बी डॉटेड। अब देखो अगेन जब ये लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, तो ये जो XY प्लेन था हमारा, कार्टेशियन जो प्लेन था, वो दो पार्ट में, फिर दो हाफ में फिर से बदल गया। लाइन के नीचे वाला हाफ क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन, लाइन के ऊपर वाला हाफ क्या होगा, अपर हाफ प्लेन। ठीक है, अगर मैं यहां लिखता हूं तो इसका मतलब ये नहीं केवल यही वाला रीजन, लोअर हाफ रीजन का मतलब ये हुआ कि लाइन के नीचे, यहां से स्टार्ट नहीं होगा, जहां पे लाइन है, लाइन के ऊपर, जस्ट ऊपर अपर, लाइन के जस्ट नीचे लोअर। ठीक है, तो ये होगा लोअर, लाइन के इधर लोअर और ऊपर अपर। अब मुझे डिसाइड करना है कि मान लो ये फर्स्ट रीजन है हमारा और ये सेकंड रीजन है, लाइन के ऊपर फर्स्ट, इट इज सेकंड। फर्स्ट वाला रीजन है अपर हाफ रीजन, सेकंड वाला रीजन है लोअर हाफ रीजन। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये इनइक्वालिटी किस रीजन में आएगा। तो पहले रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन इसलिए लेते हैं, उससे ये पता चलता है कि कौन सा रीजन हमको लेना है। अब इस रेफरेंस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट करो, तो इनइक्वालिटी इज x + y > 5 ना। अब ये पुट करो x और y की जगह, तो 0 + 0 > 5, सो 0 > 5। ठीक है, जब इस रेफरेंस पॉइंट को स्टूडेंट हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो हमने देखा कि 0 > 5। क्या 0 < 5 होता है, यस, 0 इज ऑलवेज < 5। तो यानी कि जब रेफरेंस पॉइंट पुट किए हम लोग तो वो सेटिस्फाई किया। इस केस में क्या किया, सेटिस्फाई। सपोज ये पॉइंट ओरिजिन है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, ध्यान दो, ओरिजिन कहाँ है, लाइन के रिस्पेक्ट में ये ओरिजिन कहाँ है। लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो ओरिजिन था वो लोअर हाफ प्लेन में है। देखो ये लाइन है तो लाइन के नीचे जस्ट लोअर होगा, तो यानी कि ओरिजिन जो होगा वो लोअर हाफ प्लेन में होगा, और लोअर हाफ प्लेन में है। और जब हमने इस ओरिजिन की वैल्यू इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो सेटिस्फाई किया ना। तो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो जिस साइड ओरिजिन है वही उसका एरिया हो जाता है, वही उसका सोल्यूशन हो जाता है। मतलब कि ओरिजिन लोअर हाफ रीजन में लाई कर रहा है, इसीलिए इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो लाइन के नीचे, दैट इज लोअर हाफ रीजन होगा, ये वाला रीजन। ठीक है, ये सारा रीजन जो होगा लाइन के नीचे वही इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, सोल्यूशन। ऐसे करने से ये पता चलता है कि लाइन के नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, लाइन के नीचे वाला जो रीजन है, जो एरिया है, वही इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। अब नीचे इसलिए लिए हैं क्योंकि स्टूडेंट जब हमने ओरिजिन पुट किया तो हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, जो भी इनइक्वालिटी था वो क्या किया, सेटिस्फाई कर गया। तो ये जो ओरिजिन है वो लाइन के रिस्पेक्ट में किधर है, ओरिजिन इज लाइन टू द लोअर हाफ रीजन ऑफ द लाइन। लाइन के रिस्पेक्ट में लोअर हाफ रीजन में है। लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो ओरिजिन था वो लोअर हाफ रीजन में था, और जब ओरिजिन को पुट करके देख लिए तो सेटिस्फाई किया। इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन है वही साइड उसका क्या होगा, सोल्यूशन एरिया। तो ओरिजिन लोअर हाफ रीजन में है, इसलिए सोल्यूशन एरिया भी लोअर हाफ रीजन में है। इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसके पहले दो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो हम लोगों ने दूसरा रीजन ले लिया, अपोजिट वाला। अगर सेटिस्फाई कर जाए तो ओरिजिन के साइड वाला रीजन, और अगर सेटिस्फाई ना करे तो दूसरा वाला रीजन, दैट इज अपर हाफ रीजन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू।
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। अगर ओरिजिन की वैल्यू पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन जिस साइड है, मतलब कि जिस रीजन में है, ओरिजिन लोअर हाफ रीजन में है, इसलिए इसका सोल्यूशन भी लोअर हाफ रीजन में होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जिस रीजन में, मतलब कि अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई मतलब कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दूसरा वाला रीजन हो जाएगा, मतलब कि जिस साइड ओरिजिन नहीं है वो वाला रीजन हो जाएगा। तो ओरिजिन इस साइड नहीं है तो उस केस में अपर हाफ रीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो सेटिस्फाई करे तो ओरिजिन के साइड वाला रीजन, अगर सेटिस्फाई ना करे तो दूसरा वाला रीजन, बस यही है, यही इसका सोल्यूशन है। बस यही प्रॉब्लम होती है, ग्राफ बन जाता है, बस बच्चों को ये पता नहीं चलता है कौन सा रीजन लेना है। ग्राफ से देखो इनइक्वालिटी देख के पता चल जाएगा कि वो लाइन डॉटेड होगी या डार्क। अब कौन सा रीजन लेना है तो ओरिजिन की वैल्यू पुट करके देखना, अगर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है तो ओरिजिन के साइड वाला रीजन, ओरिजिन हमारा लोअर हाफ रीजन में था तो लोअर हाफ रीजन इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दूसरा वाला रीजन दैट इज अपर हाफ रीजन हो जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन में करना है स्टूडेंट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स you can solve exercise 6.2. 2 or 3 question I will tell you, and after that we will move to the next topic. Okay, so till then students, have a nice day, take care, thank you.